हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 144, 144A एंड 145। तो ठीक है, आज मैं पढ़ रही हूँ संविधान का अनुच्छेद 144, 144A, 145। तो ठीक है, शुरू करें। ठीक है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 144। Indian Constitution's Article 144 says civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court. क्या कहता है? 144 article says civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court. All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court. (144A) article says special provisions as to disposal of questions relating to constitutional validity of laws repealed by the Constitution 43rd Amendment Act 1977 S5 WEF 13/4 1978. 144A दोबारा पढ़ देती हूँ. 144A article says special provisions as to disposal of questions relating to constitutional validity of laws repealed by the Constitution 43rd Amendment Act 1977 S5 WEF 13/4 1978. 145 article says 145 article says rules of courts etc. rules of court etc. rules of court etc. न्यायालय के नियम. 145 आर्टिकल क्या कहता है? रूल्स ऑफ कोर्ट, न्यायालय के नियम आदि. नंबर 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the court, including A. rules as to the persons practicing before the court, B. rules as to the procedure for hearing appeals and other matters pertaining to the appeals, including the time within which appeals to the court are to be entered, C. rules as to the proceedings in the court for the enforcement of any of the rights conferred by part 3rd, CC. rules as to the proceedings in the court under Article 139A, D. rules as to the entertainment of appeals under subclause C of clause 1st of Article 134, E. rules as to the conditions subject to which any judgment pronounced or order made by the court may be reviewed and the procedure for such review, including the time within which applications to the court for such a review are to be entered. F. F क्या कहता है? F. rules as to the costs of an incidental
to any proceedings in the court and as to the fees to be charged in respect of proceeding therein. G. Rules as to the granting of bail. H. H कहता है rules as to stay of proceedings. I. Rules providing for the summary determination of any appeal which appears to the court to be frivolous or vexatious, for frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay. J. Rules as to the procedures for inquiries referred to in clause 1st of Article 317. Number 2. Subject to the provisions of clause 3rd, rules made under the Number 2. Subject to the provisions of clause 3rd, rules made under this article may fix the minimum number of judges who are to sit for any purpose and may provide for the power of single judges and division courts. Number 3rd. The minimum number of judges who are to sit for the purpose of the deciding any court. Number 3rd. The minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be 5, provided that where the court hearing an appeal under any of the provisions of this chapter other than Article 132 consists of less than 5 judges and in the course of the hearing of the appeal the court is satisfied that the appeal involves substantial questions of law as to the interpretation of this Constitution, the determination of which is necessary for the disposal of the appeal, such court shall refer the question for opinion to a court constituted as required by this clause for purpose of deciding any case involving such a question and shall on receipt of the opinion dispose of the appeal in conformity with such opinion. Number 4. No judgment shall be delivered by the Supreme Court save in open court and no report shall be made under Article 143 save in the accordance with an opinion also delivered in open court. Number 5. No judgment and no such opinion shall be delivered by the Supreme Court save with the concurrence of a majority of the judges present at the hearing of the case, but nothing in this clause shall be deemed to prevent a judge who does not concur from the delivering a dissenting judgment or ओपिनियन. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है. भारत के संविधान का अनुच्छेद 144 कहता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना. भारत के संविधान का अनुच्छेद 144 कहता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना. भारत के राज्य क्षेत्र में सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे. 144 का अनुच्छेद 144 का में कहा गया है विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध. जब कानून से संबंधित जो
और संवैधानिक जो वैधता होती है, वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से जुड़ी हुई, तक उनसे संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध करने की इसमें चर्चा की गई है। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा, संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 5 द्वारा 13/4/1978 से निश्चित, ये वाला निकाल दिया गया 17/4/1978 से निश्चित। 145 अनुच्छेद कहता है न्यायालय के नियम आदि। 145 अनुच्छेद न्यायालय के नियम आदि से संबंधित है। नंबर 1, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी अर्थात का उस न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम। नंबर का उस न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम। नंबर का अपीलें सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में जिनके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर अपीलें उस न्यायालय में ग्रहण की जानी हैं, इसके बारे में नियम। खा के अंदर गा भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का परिवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम। गा यानी CC अनुच्छेद 139 का के अधीन उस न्यायालय के कार्यवाहियों के बारे में नियम। घा अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपबंध गा के अधीन अपीलों को ग्रहण किए जाने के बारे में नियम। वहाँ उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या किए गए आदेश का जिन शर्तों के अधीन रहते हुए पुनर्विलोकन किया जा सकेगा उनके बारे में, और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रिया के नियम में जिसके अंतर्गत वे समय भी है जिसके भीतर ऐसे पुनरावलोकन के लिए आवेदन उस न्यायालय में ग्रहण किए जाने हैं नियम की चर्चा की जा रही है। 4, उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों के और उनके आनुषंगिक खर्चे के बारे में तथा उनमें कार्यवाहियों के संबंध में प्रभारित की जाने वाली फीसों के बारे में नियम। 6, जमानत मंजूर करने के बारे में नियम। जा कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम। झा जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह तुच्छ या तंग करने वाली है अथवा विलंब करने के प्रयोजन से की गई है, उसके संक्षिप्त अवधारण के लिए उपबंध करने वाले नियम। या अनुच्छेद 317 के खंड 1 में निर्दिष्ट जांचों के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम। नंबर 2, खंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत करेंगे जो किसी प्रयोजन के लिए बैठेंगे तथा एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे। नंबर 3, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या इस संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। परंतु जहां अनुच्छेद 132 से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय 5 से कम न्यायाधीशों से मिलकर बना है और अपील की सुनवाई के दौरान उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का ऐसा सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है, वहाँ वह न्यायालय ऐसे प्रश्न को उच्च न्यायालय को ऐसे प्रश्न को अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के विनिश्चय
के लिए इस खंड की अपेक्षानुसार गठित किया जाता है उसकी राय के लिए निर्देशित करेगा और ऐसी राय की प्राप्ति पर उस अपील को उस राय के अनुरूप निपटाएगा। नंबर 4 उच्चतम न्यायालय प्रत्येक खुले न्यायालय में ही सुनाया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 143 के अधीन प्रत्येक प्रतिवेदन खुले न्यायालय में सुनवाई की राय के अनुसार ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। नंबर 5 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक राय मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुलता की सहमति से ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं। किंतु इस खंड में की कोई बात किसी ऐसे न्यायाधीश को जो सहमत नहीं है अपना विसम्मत निर्णय या राय देने से निवारित नहीं करेगी। तो कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 146 और 147 के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर, कमेंट, लाइक प्लीज़। जय भीम, जय संविधान।